Hello students, now I am starting with next topic of chapter 6, that is regulation of gene expression. I repeat, regulation of gene expression. In this topic we will discuss about how the gene expression get regulate during the different phases of replication or transcription or translation. So when these process are going on, and as we know it very well about this ki during these processes, replication, transcription and translation, the genetic information get changed into a polypeptide chain, or we can say a change into a protein. So these proteins are either functional or non-functional, but sometimes the a gene expression get regulate, or you can change, you can say it get changed. Instead of positive it will be negative, and instead of negative it will be positive. So these type of fluctuations are called as a regulation of gene expression during transcription or translation. So it can be regulated at several levels. What are the levels? On which levels the gene expression can be regulated? First is the transcriptional level, that is the formation of primary transcript. After the completion of transcription process, so we get a primary transcript. So at this stage regulation in the gene expression can take place. Second is processing level, that is a regulation of splicing. As primary transcript formed, after that there is a splicing, that is the elimination of introns and joining of exons, that is coding regions, to make a HN mRNA. So at this level also gene expression can regulate. Third is the transport of mRNA from nucleus to the cytoplasm. So there are some chances that when nucleus when mRNA is formed, it come out of the nucleoplasm into the cytoplasm. During this level there are chances of regulation in gene expression. This level is also responsible. And last is the translational level is also responsible. This is the level at which the protein synthesis takes place. So the genes in cells are expressed to perform a particular function or a set of function. So as we know the genes, जैसे हमारे हमने जैसे बेटा पढ़ा ही है कि हमारी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस के बाद जो प्रोटीन्स बनते हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं या नंबर ऑफ फंक्शन करते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे आज एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे. हम देखेंगे कि एक हमारे पास इंजाइम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज. बेटा वो क्या करता है, लैक्टोज को बेटा ब्रेक करता है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में. हम इस एग्ज़ाम्पल में देखेंगे ये लैक्टोज के लिए है. सो दैट्स वाई वी कॉल इट अ लैक एपरोन. सो वी विल डिस्कस कि हाउ दिस enzyme is formed within an organism, or by what ways it form. हम देखेंगे कि जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है ये किस तरह से बनता है. ठीक है, कैसे बनेगा, क्यों, क्योंकि एंजाइम है तो ये क्या होगा बेसिकली प्रोटीन. तो प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, ट्रांसलेशन के बाद.
सो ट्रांसलेशन के बाद जब इसकी सिंथेसिस हम अब देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे और ट्रांसलेशन के टाइम पे कैसे ये जीन रेगुलेट करता है। नेगेटिव एज एन एक्टिवेटर हमारे पास एक्ट करेगा और एज अ रिप्रेसर करेगा। तो बेटा इन जीन एक्सप्रेशन को एक्टिवेटर बनाना और रिप्रेसर बनाना ये किसका काम है, हमारे पास रेगुलेटरी प्रोटीन्स का। तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्रमोटर रीजन के पास। सो आई विल शो यू द डायग्राम हियर, यू कैन सी। यहाँ पे बेटा देखो, एक हमारे पास प्रमोटर रीजन होता है जिसको हम पी बोल देते हैं, क्लियर है। तो प्रमोटर रीजन हमारे पास आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा है, ये वो रीज़न है जिसके ऊपर आके जब आरएनए की फॉर्मेशन शुरू होती है, सिंथेसिस शुरू होती है, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो इस प्रमोटर रीजन के पास आके जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है उसको इनिशिएशन के बारे में कौन बताता है, किसकी हेल्प से हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ पे आके बाइंड करता है। It is due to the presence of you can say regulatory gene, ठीक है। तो रेगुलेटरी जीन है, we donate it with a I, we donate it with a I. So here is a I gene, then a promoter region. I means regulatory gene, promoter region. These two are the regions which are responsible for the initiation of RNA synthesis or binding of RNA polymerase enzyme. So आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास जो हमारा रेगुलेटरी एंजाइम जीन था आई, उसने एक हमारे पास ब्लू कलर का एक हमें mRNA दिया। दिस mRNA इज़ अ रिप्रेसर। रिप्रेसर मीन्स कि वो हमारी रिएक्शन को क्या करेगा, रोकेगा। तो वो आप देख रहे हो जो रिप्रेसर है डार्क ब्राउन कलर में, इट बाइंड टू अ ऑपरेटर रीजन। ऑपरेटर मीन्स द साइट वेयर ट्रांसक्रिप्शंस इनिशिएट। जो ऑपरेटर रीजन के पास जाके ये हमारा बाइंड हो गया, तो उसके रिप्रेसर के बाइंड होने से हमारा क्या होगा, जो ऑपरेटर रीजन है, ऑपरेटर रीजन के पास ये बाइंड होने से ये क्या कर देगा, आरएनए पॉलीमरेज को रोक देगा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, ठीक है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, तो हमारे आगे एंजाइम्स नहीं बनेंगे, प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। तो इन द सेम केस, इन दिस केस जो इनहिबिटरी जो हमारे पास रेगुलेटरी जीन था उसने क्या एक्ट किया, एज अ रिप्रेसर, और वी कैन से दिस इज द कंडीशन इन विच इंड्यूसर इज एब्सेंट। In second case, you can see over here in the second case, this one, I hide the first one. So you can look at the second diagram. In presence of inducer, in the presence of inducer, so regulatory gene synthesize repressor mRNA, that is dark brown, but the lactose is a, you can say, inducer. It just bind to the repressor mRNA. इंड्यूसर जो था हमारे पास, इंड्यूसर क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास लैक्टोज है। लैक्टोज इज़ अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम। तो लैक्टोज ने को एंजाइम चाहिए, कौन सा एंजाइम चाहिए, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तो ये क्या करेगा, हमारी जो रिप्रेसर है उसको रोक देगा। इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द एप्रोन। इसका मेन काम क्या है, हमारे पास जो हमारा सबस्ट्रेट है इसका एप्रोन को ऑन करना या ऑफ करना।
तो अब ये करेगा, रिप्रेसर को रोक देगा। रिप्रेसर अब ऑपरेटर पे जाके नहीं लगेगा, तो जब ऑपरेटर पे नहीं लगे तो ऑपरेटर पे जाके क्या कौन ज्वाइन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए पॉलीमरेज जाके ज्वाइन करेगा तो हमारे पास किसकी सिंथेसिस होगी, हमारे पास 3 जीन है, जेड वाई और ए। यू कैन सी इन द डायग्राम। जेड जो है वो बेटा हमारे पास जेड वाई और ए हमारे पास mRNA प्रोड्यूस करेंगे। उसके साथ हमारे पास आफ्टर ट्रांसलेशन वी गेट 3 टाइप ऑफ एंजाइम्स, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, प्रीमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। These are the 3 enzymes are produced. So this allow RNA access to promoter and transcription proceeds। RNA ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड हुई और उसकी वजह से अगर बेटा हमारे पास 2 तरह के रेगुलेशंस हैं लैक अप्रोन की। अगर रिप्रेसर है हमारे पास, रिप्रेसर सिंथेसाइज हो जाता है तो इसको हम नेगेटिव रेगुलेशन बोलेंगे अप्रोन की। अगर इंड्यूसर हमारे पास सिंथेसाइज हो जाता है जिसको हम पॉजिटिव रेगुलेशन बोलेंगे अप्रोन की। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट ऑपरेंड्स हैं अलग अलग के लिए, ठीक है। यू कैन सी अ फ्यू ऑफ द ऑपरोन्स। एग्जैक्टली बेटा ऑपरोन्स हमारे पास है क्या, ये एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन होता है। स्ट्रक्चरल जीन मैंने ट्रांसक्रिप्शन में आपको बताया था कौन सा होता है, जो किस में चेंज होगा, आरएनए में, एमआरएनए में। तो वो स्ट्रक्चरल जीन में जिसमें बहुत सारे जो हमारे पास जीन्स होते हैं वो उनको रेगुलेट कौन करता है, प्रमोटर और हमारे पास रेगुलेटरी जीन। तो ये जो हमारा अरेंजमेंट होता है रेगुलेटरी जीन का, सेकेंड हमारे पास होता है ऑपरेटर का, एंड थर्ड हमारे पास किसका होता है, हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन का, ठीक है। जो ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं, ऑपरोन। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑपरोन। तो हमारे पास कुछ ऑपरोन है, लैक ऑपरोन है, टीआरपी ऑपरोन है, एआरए ऑपरोन है, हिज ऑपरोन है, वॉल ऑपरोन है, एक्सेट्रा। दीज आर द डिफरेंट ऑपरोन्स। ये हमने इस चैप्टर में कौन सा पढ़ा है, लैक ऑपरोन, जिसके बीच में एक रेगुलेटरी जीन होता है। रेगुलेटरी जीन को हम आई से डोनेट करते हैं, ऑपरेटर को हम पी से हमने किया है, ठीक है। एंड जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन है वो कौन से हैं, जेड वाई ए, ठीक है। जो आई जीन है वो रिप्रेसर के लिए कोड करता है, ठीक है। जो जेड है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए, ठीक है। और जो वाई जीन है वो परमीएज के लिए, ठीक है। और जो हमारा लास्ट में ए जीन है वो करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट लैक ऑपरोन। कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।